Okay, everybody, I hope you can see the screen and you can hear me as well. Right? Okay, okay. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Yeah, happy Teachers Day. Okay, fine, everyone. Let us start the topic. There was some homework given to you. Let us come and discuss that first, then we'll proceed to the next topics. Fine? Yeah, happy Teachers Day. Fine. So, guys, let us start our topic. Dekho, there was some homework given to you. I think it was in text exercise 4, right? Everybody, I hope you've done it. In text exercise 4, सबने कर लिया? Okay. Okay, so do you have any doubt? Let's just start from question 1 to 5. Question 1 to question 5. Any doubts in that segment? 1 से 5 में किसी को doubt है? Question 4. Okay. Which of the following in which of the following the central atom does not use sp3 hybrid orbital in its bonding? इनमें से कौन से ऐसे केस हैं जहां पे sp3 hybrid orbitals यूज नहीं होते बॉन्डिंग के लिए? So let us go through the options first. देखो question 4, right? This is BeF3 minus, right? BeF3 minus. तो BeF3 minus में क्या होगा everybody? BeF2 है ये और F minus ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, तो ये बन गया अपना BeF3 minus, right? Which is we can write BeF2 plus F minus. Is that clear everybody? तो इसका स्टेरिक नंबर 3 है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. Is that clear? Everybody, is that clear or not? तो ये sp2, this is your answer. Talking about the other options, like the next one, it is H3O plus. तो H3O plus कैसे बनेगा? H2O में H plus जो है इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. इन दैट केस विल बी गेटिंग H3O plus. तो अब देखो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का बन गया. तो इसका तो 4, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया. स्टेरिक नंबर 4 हो गया, और स्टेरिक नंबर जब 4 हो गया एवरीबॉडी, then what will be the hybridization? sp3, right? Fine. So let us be moving ahead. आगे बढ़ जाए. Do you want to write this? Everybody, do you want to write this or should I move ahead? Okay. What is steric number? Steric number is sigma bond plus lone pair. Steric number represents the number of hybrid orbitals which are used in bonding. Steric number क्या है everybody? Steric number is the number of hybrid orbitals, right? Steric number is the number of hybrid orbitals used in bonding. ठीक है? Steric number is the number of hybrid orbitals used in bonding. आगे बढ़ सकते हैं? So in that case we can say that it is sp3, right? आगे बढ़ते हैं. sp3 में steric number is 4 because steric number is 4 because we will be making use of 4 hybrid orbitals. Is that clear? Is that clear or not everybody? Okay. Now coming to this third option, NH2 minus.
दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यूज हो गए, 3 है ना, एक एक्स्ट्रा आ गया, सो दिस इज योर NH2 माइनस। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एवरीबॉडी डन और नॉट? क्लियर है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। नेक्स्ट ऑप्शन इज डी, NF3। NF3 में भी देखो क्या है, NF3 में अगेन यू हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर्स, राइट? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 1 है, तो दिस इज अगेन sp3। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर बताओ? एवरीबॉडी व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3 ऑप्शन सी। ओके, श्रेयस सिंधे इज आस्किंग क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, which of the following statements is not correct? Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है ना? Now let us go through the options. पहला है hybridization is the mixing of atomic orbitals prior to the overlapping to form molecules। ये सही बात है या गलत बात है? ये तो सही है ना एवरीबॉडी? मिक्सिंग करते हैं ना प्रायर बॉन्ड बनाने के पहले, ये सही बात है, ठीक है। sp2 hybrid orbitals are formed from 2 p orbitals and 1 atomic s orbital, ये भी सही बात है, ठीक है। और sp3dt are directed towards the corner of octahedron। देखो sp3d2 वाला जो है ना, हमने शेप अभी पढ़ा नहीं है। sp3d2 जो है वो अभी हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। सिद्धेश रिटर्न, वो रुक जाओ अभी, और sp3d जो है वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे, तो ये इसको थोड़ा वेट कर लो। सी और डी की बात अभी हम थोड़ा सा करेंगे आज, अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट बताइए 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द CH बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट। किस केस में CH बॉन्ड जो है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना? तो CH बॉन्ड लॉन्गेस्ट कहां पे होगा, जरा सोचो। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए है C2H4, C2H2 सॉरी। तो अब जरा देखो, ये है C2H2। क्वेश्चन बी है इट इज C2H4। ठीक है, देन C2H4Br2। C2H4Br2। जस्ट मिनट, तो यहां तो सिंगल बॉन्ड होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल हैव सेम। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, ये सॉरी, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, ये याद है? तो यहां देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे sp3 है। तो s कैरेक्टर यहाँ पे हाईएस्ट है ना, s कैरेक्टर यहाँ पे हाईएस्ट है, सॉरी हाईएस्ट बोल रहा हूँ, लीस्ट है। s कैरेक्टर यहाँ पे लीस्ट है और p कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ना। और यहाँ पे s कैरेक्टर हाईएस्ट है तो, और p कैरेक्टर लीस्ट है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लीस्ट होगा। तो आंसर क्या हुआ? इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? देखो केमिकल बॉन्डिंग का जो अब तक का पार्ट सीखा है ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7।
which one amongst the following possesses a sp hybridized carbon in its structure? देखो sp hybridized कहाँ पे है? This is let's say CH2 CCl CH CH2. यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2 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 sp2. इसमें किसी को दिक्कत है एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है क्या? ये सारे sp2 हमने कैसे लिखे? ओके, नाउ कमिंग टू द बी ऑप्शन. देखो यहां इसकी बात कर लेते हैं. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये दोनों समझ में आ रहे हैं बात या नहीं आ रहे हैं? किसी को डाउट है? ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन. देखो नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपने पास दैट इज CH2 CH2. इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ एवरीबॉडी? इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? इसका क्या होगा? sp2, इसका क्या होगा? sp, और इसका क्या होगा? sp2. इज इट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ओके, तो आंसर यही हो जाएगा ना. इसमें है ना sp एक, इसमें एक sp है, यही हो गया आंसर. ठीक है, ओके. इसमें देखो क्या है? sp2 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 sp2, राइट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो आंसर सी बन गया. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझते हो ना एवरीबॉडी? सिद्धेश इज आस्किंग 9. तो सिद्धेश तुम्हारा ये क्वेश्चन है, एज द p कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या होता है बताओ? p कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है एवरीबॉडी? जैसे हमने पढ़ा था ना, बॉन्ड एंगल is directly proportional to percentage s character and inversely proportional to percentage p character. Is that clear? Everybody please respond in the chat box. ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो पार्थ, सॉरी पार्थ, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धेश. क्या होगा आंसर इसका? सिद्धेश इसका आंसर क्या होगा? ए होगा ना. नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 में देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल? देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस में है? N2 का कितना इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो. 14 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया? 28 प्लस 16, ये हो गया 44. तो तुम्हें देखना है कि किस केस में 44 इलेक्ट्रॉन है. पहला है N3H, दूसरा है H2O, थर्ड इज NO2 एंड फोर्थ इज CO2. तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 14 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया 43. इसमें देखो 18 डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ रहा होगा. ये है 7 प्लस 8 इंटू 2, सो दिस इज 7 प्लस 16, ये आ जाएगा 23. ठीक है ना? अच्छा, इसमें मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यार, सॉरी, मैंने मास नंबर ऐड किया. दिस इज 22. Sorry, just a minute. Let me make corrections. Just a minute. This is 7 into 3 plus 1. This is 22. Fine. This is 10. This is 7 plus 16. This is 23. And this is 22. इसमें किसी को डाउट है हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकाले?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो क्लियर है ना सबको? तो अब देखो किस किस में सेम आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज सेम स्ट्रक्चर। अब देखो सेम स्ट्रक्चर की भी बात कर रहा है, तो अब देखो सेम स्ट्रक्चर में जैसे N2O क्या होता है, NO हम लोग जानते हैं ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लीनियर होगा ये। और CO2 किस तरह का होता है, ये इस तरह का। देखो ये इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और लीनियर होगा ये, ठीक है। और इसका भी सिग्मा बॉन्ड 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp और थीटा 180 डिग्री, ये लीनियर होगा। तो लीनियर जो है वो CO2 है, इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करें। देखो हमने ये सीखा था, यहां पर बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेंट्स रूल के अंदर हमने ये सीखा था कि अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है एवरीबॉडी, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? एवरीबॉडी अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है बताओ? अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब लोन पेयर जो है वो 0 ना हो, या फिर बॉन्ड पेयर्स कैसे हों, या फिर बॉन्ड्स पेयर शुड बी डिफरेंट। तो या तो बॉन्ड पेयर अलग अलग हो जाए या फिर लोन पेयर एक भी ना हो। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटल्स, या फिर बोल सकते हो लोन पेयर, वो कहा जाते हैं जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, तो ये DPD होगा। और ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो है एस और पी कंपेयर करते हैं, डी की बात नहीं करते, इज दैट क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी। अब देखो आगे की चीजें जैसे हमने सीखी है ना, आगे की चीजें और भी बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़नी है, बट उसके लिए हमें थोड़ा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है ना। आगे की चीजें पढ़ने के लिए हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ना होगा, उसके बाद हम और डिटेल में बात कर पाएंगे। और भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज है, एप्लीकेशन है, बट उसके लिए हमें ना थोड़ा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सीखना चाहिए। आज हम वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ की बातें करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं इस थ्योरी के बाद, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट उसके लिए ना तुम्हें तो बेसिक कुछ पता होना चाहिए, बेसिक शेप क्या होता है। तो ये थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद फिर से वापस आएंगे और कुछ और एंगल्स वगैरह हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है जो आना चाहिए। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तुम्हें समझ में ही आ रहा है। देखो एटम में जैसे तुम सोचोगे NH3 है, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 1 है। तो अभी यहाँ पे जो इसको दो चीज बोलते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर, ठीक है। जो बॉन्ड बना रहा है इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बना रहा है खाली है उसको बोलेंगे लोन पेयर। फिर जैसे CO2 है, तो डबल बॉन्ड को भी बोलते हैं सिंगल सुपर पेयर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड पेयर ही बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बॉन्ड पेयर हम कितने बताएंगे एवरीबॉडी, यहाँ पे इसके बॉन्ड पेयर 2 बताएंगे और लोन पेयर 0। ये बात समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बॉन्ड पेयर क्या होता है जो बॉन्ड बन गया, लोन पेयर क्या होता है जो बच गया, दैट इज लोन पेयर। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
आगे बढ़ जाएं। ओके, अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है OSF2। OSF2 में लेट्स से दिस इज योर कंपाउंड OSF2। तो अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1। ये समझ में आ रहा है सबको? फिर जैसे H2SO4 की बात करते हैं, या फिर सपोज H2O की बात करते हैं, तो H2O में क्या है, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर एवरीबॉडी? ठीक है, 2 और 2। ठीक है, ठीक है, सही है। क्या रजत रिटर्न? रजत डन? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2। इज दैट क्लियर? उसी तरह से यदि तुम्हारे पास PH3 है, तो बॉन्ड पेयर कितना? बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो सबको पहचानने आ गया एवरीबॉडी, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बोलता है कि ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जैसे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, ये सेंट्रल एटम के पास पास जब भी आएंगे तो क्या करेंगे एवरीबॉडी? जब ये सेंट्रल एटम के आसपास आएंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब वो रिपेल करेंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास BeF2 है, तो अब ये वाला बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है और ये वाला बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दोनों को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करके इस स्थिति में चले जाते हैं जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। तो अब देखो इसमें मिनिमम रिपल्शन किस में हो सकता है? जब थीटा 180 डिग्री होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा। तो मॉलिक इस स्टेट में रिपल्शन मिनिमम है, राइट? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मिनिमम रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मिनिमम रिपल्शन होगा। तो अब इसका शेप कैसा हो गया? इसलिए इसका शेप हो जाता है लीनियर। तो ये उस शेप में रहता है, उस पर्टिकुलर शेप में रहता है जिस शेप में रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। तो यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब जो वैलेंस शेल के अलग अलग टाइप के पाई बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। पाई बॉन्ड को हम एक सिंगल सुपर पेयर की तरह ही मानते हैं। ठीक है श्रेयस? वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है ना, वो एक अप्रोक्सीमेट थ्योरी है, ये 100% एक्यूरेट थ्योरी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन इन सब को कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन के बेसिस पे करता है काम। रिपल्शन के बेसिस पे ये जो है जानकारी देता है। तो इस थ्योरी में रिपल्शन के बेसिस पे हम शेप प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि तुम्हारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको भी हम एक बॉन्ड पेयर ही काउंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डू यू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्नड? अभी तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करके उस स्टेट में आ जाते हैं जहां पे रिपल्शन मिनिमम है, और उस स्टेट में जहां पे रिपल्शन मिनिमम है वहां पे वो शेप बन जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखो इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स बड़े आसान से हैं। पोस्टुलेट्स बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी के, सो व्हाट आर दोस पोस्टुलेट्स? पहला क्या है? The shape of a molecule. The shape of a molecule depends on upon the repulsive interactions taking place between the various electron pairs. वो कौन कौन से हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये बात समझ में आ रही है? तो अब जो अलग अलग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ना, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और वो जो रिपल्सिव इंटरैक्शन है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं। अब वो रिपेल क्यों करते हैं एवरीबॉडी? रिपेल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इसलिए दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई। सिद्धेश नहीं समझ रहे हो तुम? क्या डाउट है तुम्हें, बताओ। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं चमक रहा है? एवरीबॉडी, कितने लोग हैं ऐसे जिनको नहीं चमक रहा है? देखो सिद्धेश, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो हाँ भावेश, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा। तो ये रिपल्शन होते रहता है। इज दैट क्लियर? तो वो रिपल्शन क्या करता है, वो कोशिश करता है कि रिपल्शन मिनिमाइज करे। तो दीज pair of electrons tend to occupy such positions in space that minimizes repulsion and thus maximizes the distance between them. इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओके, अब देखो क्या है, रिपल्सिव इंटरैक्शन है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लोन पेयर में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी के साथ शेयर्ड नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर में, और बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा रिपेल करेगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली लोन पेयर में ही करेगा। अब देखो, अब दूसरी बात है कि द रिपल्सिव इंटरैक्शंस इन बॉन्ड पेयर। अब देखो, ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम करेंगे कौन, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है? बॉन्ड पेयर में भी तो देखा जाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उसके बाद, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई समझने में तकलीफ है किसी तरह की तो बता सकते हो। बट ये सब रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन से कम ही होंगे। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। 3 पॉइंट डाउट है, क्या डाउट है सिद्धेश? ऑर्डर। एक्चुअली लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इज अ सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सिद्धेश, लोन पेयर इज अ सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वहां पे वो लोन पेयर का मतलब है कि वो किसी के साथ मतलब शेयर नहीं हो रहा है, तो वहां पे सिद्धेश वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली अवेलेबल है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपेल करेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से
हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में भी रिपल्शन नहीं होगा। क्या बोलना चाह रहे हो रजत? अरे इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा वहां पे। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, बट डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसको सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह बताओ, उतना डिटेल नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, और नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली तुम्हें मिलेगा नहीं, ये सब तो मिलेगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड तो तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं पे, क्योंकि फिर 6 वैलेंसी हो जाएंगे। बट यदि तुम जानना चाहते हो तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली यदि तुम वो एक को कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो ना। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल से तो ज्यादा ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अरे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिपेल क्यों करेंगे एवरीबॉडी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? इसमें किसी को दिक्कत है? अरे कंसेप्ट ये है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोले तो ज्यादा रिपल्शन, इतना ही है और कुछ नहीं। और लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन क्योंकि वो फ्री है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें कंसेप्ट। इसमें तुम लोग को दिक्कत आ रही है समझने में? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? डबल बॉन्ड में ज्यादा होगी या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, वो भावेश नहीं बता सकते। ठीक है, डबल बॉन्ड में ही ज्यादा होगी वैसे, बट वो तुमसे पूछेगा नहीं। वहां तुम बेंड्स रूल लगा देना, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन, वो ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब आगे आ जाते हैं। देखो ये चीज, ये थ्योरी सारी चीजें नहीं बताता है, ये थ्योरी कुछ चीजें ही बताता है। ये बात आपको समझना है पहले तो। इट डज नॉट टेल अस एवरीथिंग अबाउट बॉन्ड एंगल, but it does tell us some certain things about the bond angle and we want to study that। हमको वही पढ़ना है जो चीजें बताता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंपैरिजन है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रिपल सबसे ज्यादा होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो तो हम कर ही सकते हैं ना। अब जैसे पूछ रहे हो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसका ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये कैसे बता सकते हैं हम? बता सकते हैं क्या? उसके लिए फिर अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन यूज करो, देखो एस कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर कितना है, उसके बाद बॉन्ड एंगल निकालो वहां पे। आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन। सो अब देखो, यदि तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर को मैंने एसएन लिख दिया, स्टेरिक नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2 में क्या होगा? एसपी होगा। ओके, और ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल थीटा, ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, कुछ इस तरह से, जैसे BeF2, राइट। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? CO2, BeF2 एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? तो अब देखो, इसमें तो यही स्टेट में मिनिमम रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर? इस स्टेट में मिनिमम रिपल्शन होगा। अब मान लो स्टेरिक नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एवरीबॉडी? स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और शेप क्या होगा? ज्योमेट्री कुछ इस तरह का होगा। इस स्टेट में मिनिमम रिपल्शन करेगा ना ये, इस स्टेट में मिनिमम रिपल्शन करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये वाली जो स्टेट है वो क्या है? इसको हम बोलते हैं ट्राई, देखो दिस इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन,
इसको हम बोलेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर, या फिर दूसरा नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? BCl3, PF3 एक्सेट्रा। और बॉन्ड एंगल क्या होगा एवरीबॉडी? 120 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? अरे तीन बॉन्ड पेयर कितने एंगल पे रहेंगे कि मिनिमम रिपल्शन हो, बताओ एवरीबॉडी। तीन बॉन्ड पेयर कितने एंगल पे रहेंगे कि मिनिमम रिपल्शन होगा? 120 पे। तो अब ये ट्रायंगल एक्चुअली में ये ट्रायंगल प्लेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीबॉडी? डज दिस ट्रायंगल कम इन अ प्लेन? So that is why we call it triangular planar. ये लिख लिया written everyone? ये सबने लिखा नहीं लिखा? Can I scroll it down? Okay. तो अब जरा देखो क्या है। इस केस में बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है, और लोन पेयर 0 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है। अच्छा, बॉन्ड पेयर एक में एवरीबॉडी, बॉन्ड पेयर जब कोई एक होगा तो वहां बॉन्ड एंगल डिसाइड होगा क्या एवरीबॉडी? बॉन्ड पेयर सिर्फ एक होगा तो बॉन्ड एंगल डिसाइड होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर तो चाहिए। ये समझ में आ रहा है? एंगल डिफाइन करने के लिए 2 लाइन चाहिए होता है, तो एक बॉन्ड पेयर में एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके। स्टेरिक नंबर 3 में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हो सकता है क्या? बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1, एवरी ऐसा हो सकता है? sp2 ही होगा ना वो। एग्जाम्पल देखो क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड समझ में आ रहा है? तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? श्रेयस, ये टेट्राहेड्रन नहीं होगा। तुम बार बार टेट्राहेड्रन क्यों बोल रहे हो? इट विल स्टिल बी ट्रायंगुलर। ट्राइगोनल बोल सकते हो। अब जरा देखो, ये तो ज्यादा रिपल्शन है ना, ये वाला रिपल्शन ज्यादा है और ये वाला रिपल्शन कम है, राइट? R1 इज ग्रेटर देन R2। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये समझ में आ रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये ज्यादा इसको धक्का दे देगा, तो अब दोनों बराबर धक्का देंगे। तो अब होगा क्या? θ1 इक्वल टू θ2 ग्रेटर देन θ3। ये समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिद्धेश, तुम्हें समझ में आ रहा है? सिद्धेश, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो अब देखो, अब जब θ1 एंड θ2 ग्रेटर देन 120 होंगे और तो θ3 तो लेस देन 120 होगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। अब जरा समझने की कोशिश करो हमने क्या सीखा है अभी। अब जरा बात करते हैं, तो जब हम शेप प्रेडिक्ट करते हैं तो हम लोन पेयर नहीं देखते एवरीबॉडी। जब हम शेप प्रेडिक्ट करते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। व्हेन वी प्रेडिक्ट शेप, we only consider bond pairs. Is that clear? जब हम शेप कंसिडर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं। तो अब इसका शेप कैसा है? दिस इज कॉल्ड बेंट। दिस इज कॉल्ड बेंट ट्राइंगल। या फिर सीधा बोल दो वी शेप, या फिर सीधा बोल दो वी शेप्ड। वी जैसा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड वी। या एक और नाम सीधा, कुछ लोग सीधा बेंट भी बोलते हैं इसको, बेंट भी, मुड़ा हुआ है। लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो राइट इट डाउन एवरीबॉडी।
आगे बढ़े। बेंट किसका शेप है? बेंट इसका SO3 का, SO2 का एग्जाम्पल दिया ना, SO2। क्लियर और नॉट? फाइन, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। स्क्रॉल अप करूं? डन, ओके। तो देखो अब आगे का केस कंसिडर करते हैं। मान लो स्टेरिक नंबर हमारा 4 हो गया, स्टेरिक नंबर हमारा 4 हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टेरिक नंबर 4 पे? एवरीबॉडी स्टेरिक नंबर 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो हम ऐसा करते हैं, बॉन्ड पेयर 4 रखते हैं और लोन पेयर रखते हैं 0। ठीक है एवरीबॉडी, हम इस बार बॉन्ड पेयर 4 रखते हैं और लोन पेयर रखते हैं 0। तो उस केस में इसका शेप क्या होगा? शेप एंड बॉन्ड एंगल थीटा। अब जरा देखो 4 है तो क्या करेंगे, ये तीनों ऐसे चले जाएंगे और ये ऐसे चला जाएगा, ये समझ में आ रहा है? डू यू सी अ टेट्राहेड्रन? तुम्हें टेट्राहेड्रन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जस्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन? देखो ये टेट्राहेड्रन ऐसा एक, इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे यदि मुझे 3D में हाँ 3D में, जैसे मुझे सपोज एक क्यूब में टेट्राहेड्रन दिखाना है, तो क्यूब में टेट्राहेड्रन कैसे दिखाऊंगा मैं? जैसे ये मान लो, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है, जैसे ये मीथेन है C, और एक काम करता हूं मैं, इधर लिख देता हूं H। ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है? अब इनके जो, लेट से, ये जो फेसेस हैं इनको कनेक्ट करो, तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ओके ठीक है, आई विल शो यू एन इमेज ऑन गूगल। वन 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रन। एक सेकंड रुक जाओ। टेट्राहेड्रन in 3D। Okay, fine, just a minute, fine। Okay, can you see this everybody? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये जो मैंने गूगल में मैंने सर्च किया है, तो अलग अलग इमेजेस तुम्हें दिख रहे होंगे, जैसे यू कैन रेफर टू दिस वन। तो ये टेट्राहेड्रन लग रहा है तुम्हें? ये तो ज्यादा क्लियर है। ठीक है, और दिस वन, राइट? यहाँ पे तो अब देखो ये टेट्राहेड्रन समझ में आ रहा है कैसे बना? तो इसके कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं बताओ एवरीबॉडी? हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस डज इट हैव? 4 ट्रायंगुलर फेसेस है ना, देखो ना, 1 2 3 और एक नीचे भी तो है। तो इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन बिकॉज इट हैज, स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। प्रणव, स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा,
और यहाँ पे बॉन्ड एंगल सी, एक बच्चा पूछ रहा है कि स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होता। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और यहाँ कितना है? 109 डिग्री। तो तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पे रिपल्शन कम है? ज्यादा एंगल का मतलब क्या है एवरीबॉडी? ज्यादा ज्यादा एंगल का मतलब, ज्यादा बड़ा एंगल का मतलब कम रिपल्शन हुआ ना। इज दैट क्लियर? प्रणव, तुम्हें बात समझ में आ रही है? प्रणव, आर यू देयर? ओके। अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं? अरे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, और नीचे नीचे का एक ट्रायंगल दिख रहा है। दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, दिस इज द थर्ड ट्रायंगल, और एक पीछे इस तरफ भी तो ट्रायंगल होगा। इसमें भी देखो, एक दो, और एक उस तरफ से तीन, और एक नीचे चार। चार ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं? ओके, so this theta, let's say talk about this angle theta, what is it? यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है एवरीबॉडी? यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, and it is called tetrahedron because it has four triangular faces, right? It is called tetrahedron because it has four triangular faces. Right? एग्जाम्पल क्या है? CH4। एवरीबॉडी आगे बढ़ जाए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल मूव अहेड। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? पिछले वाले में जाना सिद्धेश में। रिटर्न सिद्धेश। सिद्धेश रिटर्न। ओके, ओके फाइन। देखो क्या है एवरीबॉडी, अब जरा समझते हैं इस बात को। स्टेरिक नंबर 4 में ही, स्टेरिक नंबर 4 में ही और हाइब्रिडाइजेशन sp3 में ही और भी केसेस बन सकते हैं। जैसे बॉन्ड पेयर हम लोग कर लें 3 और लोन पेयर कर लें 1, ठीक है एवरीबॉडी? ऐसा तो हो सकता है ना? एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 बॉन्ड पेयर। देखो NH3 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो अब ये जो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपेल करेगा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये वाला एंगल जो है θ1, इट विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात में किसी को डाउट है? ओके, तो इसका शेप कैसा दिखेगा बताओ? इसका शेप पिरामिड जैसा दिखेगा क्या? हम लोन पेयर तो देखते नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, ये समझ में आ रहा है? लोन पेयर शेप में नहीं कंसीडर करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं। तो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पिरामिडल। राइट इट डाउन। पर नीचे ट्रायंगल रहेगा भावेश, बट यहाँ पर, अरे एवरीबॉडी, मान लो तुमने टेंट बनाया, कभी पिकनिक पे गए हो भावेश? तो तुमने पिरामिड टाइप का टेंट बनाया, तो तुम पिरामिड टाइप का टेंट बनाओगे तो नीचे तो ट्रायंगल बनेगा ना फिर तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना उसको तुम ट्रायंगल बोलोगे क्या? भावेश, नीचे ट्रायंगल बन जाएगा, तुमने टेंट बनाया, जंगल में गए तुम सब पिकनिक मनाने या कहीं घूमने गए, तो तुम उसको ट्रायंगल थोड़ी बोलोगे। तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो तो पिरामिड टाइप है ना। So what will you call it? You'll call it pyramidal. I hope it makes sense and it is clear to you, right?
ओके, और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी चीज तुम्हारा मिस हो गया श्रेयस? श्रेयस विच पार्ट यू लेफ्ट? यही, ये मतलब सेम यही बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या भाई आंधी तूफान आ रहा है क्या? ओके, सी यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि तुम्हें बॉन्ड पेयर कंसिडर करने हैं और शेप पता करना है। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से, ये तो सबको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपेल करता है। तो उस केस में ये वाला जो रिपल्शन है ना, इसको अंदर ढकेलेगा इस तरफ, और ये भी इसको अंदर ढकेलेगा, ये भी इसको अंदर ढकेलेगा। तो ये जो एंगल है, जो टेट्राहेड्रल में नॉर्मल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो उससे जब कम हो जाएगा तो हम लोन पेयर देखते नहीं है। तो ये शेप रहेगा वो किस तरह का रहेगा? पिरामिड टाइप का रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल। आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी शुड मूव अहेड। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट केस क्या बनता है, sp3 में एक और केस बनता है। देखो स्टेरिक नंबर 4 में ही, स्टेरिक नंबर 4 में ही sp3 में ही देखते हैं। स्टेरिक नंबर अभी भी 4 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। एग्जांपल है H2O। H2O इसका क्या शेप होगा बता? ये तो फिर रिपेल करने लगेगा, और ये वाला एंगल काफी छोटा हो जाएगा। ये जो थीटा होता है, इट इज अगेन लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये और कम हो जाएगा थीटा। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो सिर्फ ऐसा रहेगा ना एवरीबॉडी, इसी तो ऐसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं बेंट और वी शेप्ड। वी जैसा दिख रहा है ना ये। एग्जांपल है H2O। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके, नाउ 5 स्टेरिक नंबर sp3d। एवरीबॉडी स्टेरिक नंबर 5 हो गया sp3d। हमने रखा बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो सकता है NH3 का टेट्रा, नहीं NH3 का टेट्राहेड्रन थोड़ी, NH3 इज पिरामिडल। NH3 इज पिरामिडल। श्रेयस इज दैट क्लियर? NH3 टेट्राहेड्रल थोड़ी होगा, NH3 इज पिरामिडल, हमने देखा ना अभी। ये देखो ना, NH3 हमने बनाया तो है, लोन पेयर नहीं कंसीडर करते, तो ये क्या है? एवरीबॉडी व्हाट इज NH3, व्हाट इज द शेप बताइए? एवरीबॉडी व्हाट इज द शेप? इट इज पिरामिडल। अरे पिरामिड कैसे नहीं है ये? पिरामिड कैसा होता है फिर बताओ? गूगल पे जाके इमेज सर्च करो पिरामिड। जरूर, अच्छा पिरामिड के 4 कॉर्नर जरूरी होते हैं क्या? पिरामिड नहीं पता तुम लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन? 4 कॉर्नर रहना चाहिए, कहां पड़ा है भैया? पिरामिड के 4 कॉर्नर होने चाहिए, कहां पड़ा है? कैन यू सी दिस इमेज? देखो पिरामिड कैसा भी हो सकता है। You can see this is a square based pyramid, this is triangle based pyramid, this is a hexagon based pyramid। पिरामिड तो बहुत तरह के हो सकते हैं, these are all pyramids। जैसे तुम टेंट बनाते हो तो तुम बेस स्क्वायर बना सकते हो, तुम टेंट का बेस ट्रायंगल बना सकते हो, तुम टेंट का बेस हेक्सागन बना सकते हो। ठीक है, तो ये सबके सब पिरामिड है, और ये भी पिरामिड है।
ये ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड देखो ना, ट्रायंगल में तो 3 ही कॉर्नर है। ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। एवरीबॉडी कैन यू सी द स्क्रीन? ये आपको ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड नहीं दिख रहा है फोटो? आगे बढ़ जाएं? ओके, सो दिस इज पिरामिडल, फाइन। बट बुक्स में टेट्राहेड्रन बोला है लोन पेयर कंसीडर करके। अरे बुक्स में टेट्राहेड्रल बोला है वो गलत है। एक्चुअली में NH3 का शेप पिरामिडल होता है, ठीक है। जेडी ली में भी टेट्राहेड्रन वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। जब हम शेप कंसीडर करते हैं ना तो वी कॉल इट पिरामिडल। इज दैट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके हिसाब से आएगा, बट शेप तो इसका पिरामिडल ही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी बुक में कुछ भी लिखा रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। NH3 की ज्योमेट्री क्या है? NH3 की ज्योमेट्री है पिरामिडल। दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ कमिंग टू sp3dd, that is PCl5। कमिंग टू sp3d, that is PCl5। देखो अब मान लो 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो कैसा शेप होगा बताओ? 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो कैसा शेप होगा? 5 बॉन्ड पे पेंटागोनल, पेंटागोनल में एंगल क्या आएगा बताओ? पेंटागोनल में क्या एंगल आएगा बताओ? पेंटागोनल जो तुम बोल रहे हो उसमें एंगल आएगा 72 डिग्री। इज दैट क्लियर? 72 डिग्री आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि हम जो है एंगल मतलब कुछ इस तरह का दिखा दें। कैन यू सी दिस इमेज? एवरीबॉडी कैन यू सी दिस इमेज? ये दिख रहा है तुम्हें या फिर ये देखो? तो इसमें इसको बोलते हैं ट्रायंगल। तुमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, बेस और ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, या फिर तुम इसको देख लो या इसको देख लो, जो सही लग रहा है देखो। कैन यू सी दिस? तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल, और ऊपर बाई पिरामिडल। ट्रायंगल के नीचे पिरामिड, ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल के नीचे पिरामिड, ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड। मतलब देखो, यदि हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो हम पेंटागोनल बना ले तुम्हारे हिसाब से ये, तो यहाँ एंगल क्या होगा? 72 डिग्री होगा ना, यहाँ रिपल्शन तो ज्यादा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब मान लो हम ऐसा कर ले कि एक ट्रायंगल बनाए यहाँ पे ऐसे, और एक ऊपर लाइन बना और एक नीचे बना। तो ये जो शेप बना वो कैसा है? ये जो शेप बना वो कैसा है बताओ एवरीबॉडी? यहाँ पे एंगल 72 डिग्री था, और यहाँ पे एंगल ये वाली कितनी है बताओ? दिस इज 120 डिग्री एंगल, राइट? और ये वाली एंगल कितनी है? 90 डिग्री है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस केस में जो हमने बनाया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड, ट्रायंगल के नीचे पिरामिड। अरे ये ट्रायंगल बेस का ऊपर और नीचे पिरामिड बन सकता है ना? 72 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए ये फेवर नहीं करेंगे, और ये फेवर करेंगे क्योंकि इसमें कम रिपल्शन है। दैट क्लियर? तुम्हें ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड और ट्रायंगल के नीचे पिरामिड दिखा? तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
एक ट्रायंगल है और दो पिरामिड है, क्योंकि इसमें मिनिमम रिपल्शन है। तो मैं अभी भी नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो यू कैन सी दिस इमेज। कैन यू सी दिस इमेज? ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल का बेस, एक ऊपर पिरामिड बना लो और एक नीचे पिरामिड बना लो। यू कैन लुक एट दिस। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? तो अब ये जो मिनिमम स्टेट है ना, मिनिमम रिपल्शन वाली स्टेट, वो ये होती है। तो इसको नाम देते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और किसी को डाउट है? ओके, तो अब जरा बताओ, ये जो कंपाउंड है इसमें 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? एवरीबॉडी कैन यू टेल मी? ये बताओ 120 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 120 डिग्री एंगल्स कितने हैं? एवरीबॉडी 120 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 3। और 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री एंगल्स। ओके सुमति, योर आंसर इज करेक्ट। नयनेश, योर आंसर इज करेक्ट। सोनाली गुड। सिद्धेश नहीं। अरे 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 6 हैं, 6। अरे ये एक 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री, उसी तरह से नीचे वाला, अरे एक ट्रायंगल बना रहे हो, इसके ऊपर एक लाइन बना रहे हो, तो 90 डिग्री एंगल तो 3 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे नहीं होगा क्या? तो 6 हुआ ना 90 डिग्री एंगल। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेरिक नंबर 5 की ही बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d की ही बात करेंगे। बॉन्ड पेयर 4, XeF2 नहीं ले सकते हैं। XeF2 में खुद काउंट करो कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। सी बॉन्ड पेयर 5, 4 और लोन पेयर 1। एग्जांपल है SF4। एवरीबॉडी, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, SF4। कैन यू सी दिस? एवरीबॉडी कैन यू सी दिस? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पे दो तरह के पोजीशंस है, यहाँ तुम समझो तो दो तरह के पोजीशंस है। एक होता है दिस पोजीशन, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। जो ट्रायंगल में पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। और ये जो थोड़े दूर हैं और थोड़े लंबे बॉन्ड्स हैं, उनको बोलते हैं एक्सियल। तो ये जो बड़े बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं एक्सियल, और ये जो प्लेन में बॉन्ड्स हैं उनको बोलते हैं इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पे थीटा कितना है? 120 डिग्री। और एक्सियल में थीटा 90 डिग्री है। तो एक्सियल वाले में ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा ना, और इक्विटोरियल में कम। तो लोन पेयर को कहां डालेंगे? बताओ, लोन पेयर को कहां डालेंगे बताओ? 120 डिग्री पे डालोगे लोन पेयर को, या 90 डिग्री पे डालोगे लोन पेयर को? एवरीबॉडी, लोन पेयर को 120 डिग्री पे डालोगे या फिर 90 डिग्री पे? 120 डिग्री पे डालोगे। क्यों 120 डिग्री पे डालोगे? क्योंकि 120 डिग्री पे एंगल ज्यादा है, रिपल्शन कम होगा। तो यहां पे क्या होता है? लोन पेयर इज एकोमोडेटेड, लोन पेयर इज एकोमोडेटेड एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, since repulsion will be less। तो लोन पेयर को 120 डिग्री पे रखेंगे तो बेहतर है, कम रिपल्शन होगा। 90 पे रखेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। इसलिए इसको हम लोग 120 पे ही रखते हैं, यानी इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। राइट इट डाउन एवरीबॉडी। इसमें किसी को डाउट है कि लोन पेयर को क्यों हमने 120 पे रखा? रिटन एवरीवन? ओके, अब जरा देखो क्या होता है ये।
अब ये पर्टिकुलर कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड, तो अब ये तो रिपेल करेगा ना, ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये वाली एंगल थीटा जो है इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ये इसको रिपेल करने लगेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये थीटा लेस देन 120 होगी। जरा देखो ये किस तरह का दिखता है। लोन पेयर का तो हम कंसिडर करते नहीं है, तुम्हें कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? ये एस एफ 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 एफ, ये झूला लग रहा है तुम्हें? सी सॉ इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सी सॉ, दिस इज कॉल्ड सी सॉ। लोन पेयर तो हम कंसिडर नहीं करते ना एवरीबॉडी, लोन पेयर तो हम कंसिडर नहीं करते शेप प्रेडिक्ट करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी सॉ। ये समझ में आ रहा है? सी सॉ में तुम्हें फोटो दिखाई देता हूं, व्हाट इज एग्जैक्टली अ सी सॉ। जस्ट अ मिनट। कैन यू सी दिस इमेज एवरीबॉडी? तुम्हें दिख रहा है? इसी तरह का लगता है ना ये सी सॉ, ये झूला टाइप बन गया ना सी सॉ। लोन पेयर ऊपर रहेगा तो ये बन गया सी सॉ। इज दैट क्लियर? सिद्धेश अभी क्लियर है? सिद्धेश क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा शेप। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। लोन पेयर नॉर्मली शेप कंसीडर करने में नहीं कर, अरे शेप जो है वो बॉन्ड पेयर से डिसाइड होता है, ठीक है? शेप जो है जहां तक एटम है वहां से डिसाइड होगा ना। इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है। जो बॉन्ड है, जो एटम है, उसको ही डिसाइड करते हैं, उसको ही कंसीडर करते हैं शेप प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है? लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज वहां लोन पेयर तो कुछ होता ही नहीं है ना। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज रहेगा, कोई शेप तो डिसाइड करेगा नहीं, बाउंड्री पता चलता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ सी, अरे इसमें क्या डिफिकल्ट है? तुम्हें शेप कंसिडर करना है। मान लो कि तुम्हारे बाल इतने बड़े हो गए कि तुम भालू जैसे लगने लगो शरीर के, तो तुम बाल को कंसिडर करोगे या सिर्फ बॉडी को कंसिडर करोगे? लोन पेयर भैया डीलोकलाइज्ड होता है, कोई एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, इसमें डिफिकल्ट वाली क्या बात है? लोन पेयर इसलिए नहीं कंसिडर करते, जहाँ पे फिक्स्ड एटम है वहां पे तो फिक्स ज्योमेट्री मिल रही है, फिक्स बाउंड्री मिल रही है, सिर्फ वही कंसिडर करेंगे। दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लोन पेयर को कैसे कर ले शेप में कंसिडर? लोन पेयर एक्चुअली में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पे कुछ होता ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वहीं पे कंसिडर करेंगे ना शेप के लिए, जहां पे कोई प्रॉपर एटम हो। ओके फाइन, लेट अस मूव अहेड। स्टेरिक नंबर 5 पे हम लोग sp3d में ही देखते हैं बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2। एग्जाम्पल आ जाएगा एक ClF3, देखो ClF3 है, ये F ClF, ये देखो लोन पेयर। तो तुम्हें ये T लग रहा है क्या? अब देखो ये तुम्हें T लग रहा है, ये तो एकदम T बन गया ना, तो इसको बोलते हैं T शेप्ड। लोन पेयर फिर से कंसिडर नहीं करते, लोन पेयर कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर?
दिस इज कॉल्ड टी शेप्ड। एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं। लोन पेयर को फिर से इक्विटोरियल पे नहीं, यहीं पे रखेंगे इक्विटोरियल पे। ये समझ में आ रहा है सबको? लोन पेयर विल अगेन बी प्लेस्ड एट द इक्विटोरियल पोजीशन। रिटर्न एवरीवन। नेक्स्ट केस देखते हैं। स्टेरिक नंबर 5 में कोई और केस बनेगा क्या? लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 2। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? XEF2। देखो XEF2, तीनों के तीनों लोन पेयर आ जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब इसका शेप देखो क्या है, ये तो लीनियर हो गया ना। इतना ही नहीं, और भी एग्जांपल्स हैं, ये हो जाएगा लीनियर। एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे I3 माइनस। देखो I माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, इसके पास भी 3 लोन पेयर बच जाएगा। देख लो कैसे। 7 होता है, 1 लग गया, 6 बचा, तो 6 से 3 लोन पेयर। दिस इज अगेन लीनियर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और कोई केस बन सकता है क्या? एक बॉन्ड या एक बॉन्ड पेयर से तो एंगल सी, एक बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर हो सकता है एवरीबॉडी? एक बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर एंगल ही कहां से डिसाइड करेंगे? तो और केस तो हम बना नहीं सकते। राइट इट डाउन। डन। ओके, क्वेश्चन 6। देखो बॉन्ड पेयर 6 कर देते हैं, लोन पेयर 0 कर लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं sp3d2। ठीक है? भावेश रिटर्न। सिद्धेश, क्या लिखने में दिक्कत हो रही है? लिखने का काम बाद में कर सकते हो ना। ठीक है, लिख लो, राइट इट डाउन, राइट एंड देन। और ऊपर करो स्क्रॉल। क्या लिखना है तुम्हें? और ऊपर ये। डन। ओके, ये लिख लिया तुमने? फाइन। सी, तो अभी केस नंबर 6 की बात करते हैं। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एवरीबॉडी अब तक हमने पढ़ा क्या है? व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ? हमने ये पढ़ा है कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, ये क्या करते हैं? रिपल करते हैं एक दूसरे को। राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। राइट? तो वो रिपेल करते हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है?
सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है? लोन पेयर, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। तो मॉलिक्यूल क्या करता है कि इट ट्राइज टू अक्वायर अ स्टेट जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो, और जिस स्टेट में रिपल्शन मिनिमम होती है वही उसका ज्योमेट्री होता है, और मॉलिक्यूल क्योंकि ज्यादातर टाइम वहीं पे रहना पसंद करता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? मॉलिक्यूल वहां पे रहना पसंद करता है जहां पे रिपल्शन सबसे कम हो। इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन। तो ये वाली बात आप लोग समझ रहे हैं कि जहां पे रिपल्शन मिनिमम होगा वही होगा। तो अब दो बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा शेप बताओ एवरीबॉडी? दो बॉन्ड पेयर है तो क्या शेप होना चाहिए? दो बॉन्ड पेयर कितने एंगल पे रहेंगे? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पता कर सकते हो। 180 डिग्री पे तो शेप क्या होगा? शेप होगा लीनियर। एक चीज और है, लोन पेयर हम कंसिडर करते हैं क्या शेप डिसाइड करने के लिए? एवरीबॉडी, लोन पेयर हम कंसिडर करते हैं क्या शेप डिसाइड करने के लिए? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्चुअली में वहां पे कुछ होता ही नहीं है, राइट? क्योंकि एक्चुअली में वहां पे कुछ होता ही नहीं है। अब मान लो तीन बॉन्ड पेयर रहेंगे तो क्या होंगे बॉन्ड एंगल? एवरीबॉडी, 120 डिग्री। और शेप क्या होगा उसका? शेप क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट? ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके। मान लो 120 के बाद बात कर लेते हैं। मान लो जैसे चार बॉन्ड पेयर हो, तो चार बॉन्ड पेयर में क्या होगा एंगल? एवरीबॉडी, चार बॉन्ड पेयर में क्या होगा एंगल? 109 डिग्री 25 मिनट्स। और शेप क्या होगा? शेप क्या होगा एवरीबॉडी? टेट्राहेड्रन। ओके। अच्छा, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे क्या शेप होगा? दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे क्या शेप होगा? वी शेप्ड। दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे बेंट या फिर वी शेप। दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बोल रहा हूं, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, वी होगा ना? ठीक है। ओके। तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे एवरीबॉडी, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे पिरामिडल। ठीक है। दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर पे बेंट या फिर वी शेप। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, ओके। एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर हो सकता है क्या एवरीबॉडी? एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे लेट से हम बात करते हैं, लेट से हम बात करते हैं पांच बॉन्ड पेयर। पांच बॉन्ड पेयर पे क्या होगा एवरीबॉडी? पांच बॉन्ड पेयर पे क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इज दैट क्लियर? ओके। और चार बॉन्ड पेयर एक पे, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे क्या होगा एवरीबॉडी? चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे क्या होगा? सी सॉ। गुड, सी सॉ होगा। गुड। ओके। ओके, तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर पे टी शेप। ओके, फाइन। एंड दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर पे लीनियर। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बता दो। ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब आगे बढ़े या फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करें बताओ? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, जो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें। पहले प्रेडिक्ट द शेप। क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। प्रेडिक्ट द शेप्स।
ठीक है, क्वेश्चन है ये केस हम लोग करेंगे, रुक जाओ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। OSF2, OSF2 का शेप क्या होगा बताओ। OSF2, देखो OSF2 में सल्फर सेंट्रल होगा, 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ इसका क्या हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, क्या होगा शेप, एवरीबॉडी इसका क्या शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं इट इज पिरामिडल। ये समझ में नहीं आ रहा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पे तो पिरामिडल ही आता है ना, ये पिरामिड टाइप बन जाएगा कुछ इस तरह का। इज दैट क्लियर। ओके, H2O का क्या होगा, H2O का क्या होगा एवरीबॉडी, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसका होगा V शेप्ड। इज दैट क्लियर। V शेप बोल सकते हो या फिर बेंट भी बोल सकते हो, सेम ही चीज है, यू कैन कॉल इट V shaped और बेंट। ओके, PCl3, एवरीबॉडी PCl3, PCl3 का क्या होगा, पिरामिडल, गुड प्रथमेश। इज दैट क्लियर। पिरामिडल ना, ओके, POCl3, POCl3 क्या होगा एवरीबॉडी, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रन। इज दैट क्लियर। ओके फाइन, तो अब थोड़ा आगे बढ़ लाते हैं, लेट्स से PCl5, PCl5 पिरामिडल में दिक्कत आ रही, पिरामिडल में दिक्कत क्यों आ रही है तुम्हें, इसका क्या होगा शेप, इसका होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और किसी को कोई डाउट है, अभी कंफर्टेबल हुआ, और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिस करो हो जाओगे कंफर्टेबल। देखो प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, दिक्कत नहीं रहेगी फिर। अच्छा, NH3 बताओ, NH3 क्या होगा, एवरीबॉडी NH3 क्या होगा, पिरामिडल। इज दैट क्लियर। ओके, अच्छा NH4 प्लस बताओ, NH4 प्लस, NH4 प्लस क्या होगा एवरीबॉडी, NH3 और H प्लस, ये बन गया NH4 प्लस। ठीक है, तो ये भी तो टेट्राहेड्रल ही होगा ना, क्लियर है। ओके ओके, लेट्स से SO2Cl2, ये क्या होगा एवरीबॉडी,
SO2Cl2 क्या होगा ये? टेट्राहेड्रन होगा, ठीक है। ओके, NF3 इसका बताओ। NF3 pyramidal, is that clear? Okay, XeO2F2, XeO2F2, एक मिनट है ना, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर को तो रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ये क्या है बताओ? व्हाट इज दिस? ये क्या हो जाएगा? सी सॉ। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी आर यू कंफर्टेबल नाउ? अभी कंफर्टेबल नहीं हुए हो क्या? अभी कंफर्टेबल हो? श्रेयस तुम कंफर्टेबल नहीं हो अभी तक? अभी कितने लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है, मतलब नहीं कर पा रहे हैं अभी? अरे करना तो यही है ना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करना है बस, और वो सीक्वेंस से बताते जाना है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पिरामिडल कब होता है? पिरामिडल होता है जब तुम्हारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, और टेट्राहेड्रल होता है जब तुम्हारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो। इतना ही तो है कंसेप्ट। 3 बॉन्ड पेयर पिरामिड बनाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर क्या बनाएंगे? पिरामिड बनाएंगे। और मैंने तुम्हें फोटो भी दिखाया था कि पिरामिड जिसका ट्रायंगल बेस था। 3 बॉन्ड पेयर पिरामिड बनाएंगे जिसका बेस ट्रायंगल होगा। 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल बनाएंगे। अभी एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक चीज है, इसमें कोई खास एक्सेप्शन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। 3 बॉन्ड पेयर पिरामिड बनाएगा, 4 बॉन्ड पेयर क्या बनाएगा? एवरीबॉडी 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल बनाएगा। इतना ही कंसेप्ट है ना? ओके, और किसी को इसमें कोई डाउट है? आर यू कंफर्टेबल नाउ? अच्छा, ये बताओ, तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट का जो बुकलेट मिला है वो डिस्कस सॉल्व कर लिया है क्या? I am thinking of keeping a doubt session tomorrow, probably at 1 p.m. I'll post the same in the group. मोल कॉन्सेप्ट का डाउट सेशन कल जो है, कल कितने बजे टेस्ट है तुम लोग का? टेस्ट कितने बजे से है? अरे कितने से कितने बजे तक? 10:30 टू टेस्ट 1:30 खत्म होता है, तो कैन वी कीप एट 2 o'clock? कैन वी कीप द डिस्कशन एट 2 o'clock? 2 3 दिन के बाद, 2 3 दिन के बाद कब बताओ, कब रखना चाहते हो? नए बच्चे जो है वो लोग बता दो, कब रखना चाहते हो? ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास रखें? वेडनेसडे को रख लेते हैं फिर। ठीक है, वेडनेसडे को कर लेंगे, वेडनेसडे को करेंगे, कभी टाइम रख के कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आज ये अभी सब लोग कंफर्टेबल हो? कैन यू प्रेडिक्ट द शेप्स नाउ? अब प्रेडिक्ट कर सकते हो ना शेप? होमवर्क आई विल पोस्ट इन द ग्रुप। अरे बस बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना है और उसके बेसिस पे शेप प्रेडिक्ट कर देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। श्रेयस तुम्हारा क्लियर हो गया पिरामिडल और इसमें टेट्राहेड्रल में? तीन तुम्हारे पास, अरे मान लो जैसे तुम्हारे पास 3 डंडे हैं और तुम 3 डंडों से टेंट बनाओगे, तो तुम्हारा टेंट पिरामिड नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो 3 बॉन्ड पेयर क्या करेगा? पिरामिड बनाएगा। SY सर हैज अ लेक्चर। अच्छा ठीक है, आई कीप यू पोस्टेड ऑन द सेम। वेडनेसडे को कर देंगे, ठीक है? वेडनेसडे तो फ्राइडे को कर लेंगे, थर्सडे को कर लेंगे, किसी दिन कर लेंगे। फाइन। आज के क्लास में किसी को और कोई डाउट है?
एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, एनी डाउट? सार्थक, डू यू हैव एनी डाउट? ओके फाइन. फाइन, ठीक है. गुड बाय.